ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند میں عزیزو، آج کا دن ولادت المسیح عالمگیر کلیسیا میں پرمسرت اور نوید کا دن ہے، جو انسانی تاریخ کا سب سے اہم اور منصوبہ نجات کے لیے حیرت انگیز واقعہ خدا کا انسان سے محبت کا اظہار ہے۔ آج کرسمس کا دن نعمتوں، برکتوں، رحمتوں اور سلامتی اور نجات کا دن ہے۔ آج کی تلاوتوں میں ہم سنیں گے کہ اس کی آمد سے دنیا کا منظر بدل گیا اور تاریخی میں چلنے والوں پر خدا کا نور چمکا اور انبیاء کی پیشن گوئیاں پوری ہوئی۔ آئے ہم یسوع کو اپنے دل کی چرنیوں میں خوش آمدید کہیں۔ عزیزو، ہم اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر آپ اس پاک عبادت میں شریک ہو سکیں۔ میں قابل مسلم خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدس میں ہمیشہ گواہی سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قابل مسلم خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔
جو تیرے ساتھ اور قدس کی ودانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے آمین۔ زمین کی تمام حدود ہمارے خداوند کی نجات دیکھیں گی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 52 باب 7ویں آیت سے لے کے 10ویں آیت تک۔ خداوند فرماتا ہے، پہاڑ کو اس مبشر کے قدم کیا ہی خوشنما ہے جو سلامتی کی بشارت دیتا ہے، یعنی اس کی جو خیریت کی خوشخبری دیتا اور نجات کی باتیں سناتا ہے، اور جو صہیون سے کہتا ہے کہ تیرا خدا مسلط ہوگا اور تیرے پہرے داروں کی آواز ہے۔ وہ اپنی آواز بلند کرتے اور مل کر للکارتے ہیں، کیونکہ جب خداوند صہیون میں واپس آئے گا تو وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے۔ اے یروشلم کے ویرانوں، آواز اٹھاؤ اور مل کر للکارو، کیونکہ خداوند اپنی امت کو تسلی دے گا اور یروشلم کو چھڑائے گا۔ خداوند اپنے مقدس بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کرے گا اور زمین کے تمام اطراف ہمارے خداوند کی نجات دیکھیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ جماعتی جواب، زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ۔ کیونکہ اس نے تعجب انگیز کام دکھائے ہیں، اس کے دست راست نے اور اس کے قدوس بازو نے اسے فتح بخشی ہے۔ جماعتی جواب، زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے اور اس نے غیر قوموں کے روبرو اپنا عدل مشفق کیا ہے۔ اس نے اسرائیل کے گھرانے کی خاطر اپنی رحمت اور وفاداری فرمائی ہے۔ جماعتی جواب، زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ اے تمام ممالک، خداوند کے لیے للکارو، شادمانی اور خوشی اور مداح سرائی کرو۔ جماعتی جواب، زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ خداوند کے لیے بربت کے ساتھ مداح سرائی کرو، بربت اور صدار کی آواز کے ساتھ بادشاہ خداوند کے روبرو نرسنگوں اور توڑائی کی آواز سے للکارو۔ جماعتی جواب، زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت دانیوں کے نام پر اس کا پہلا باب پہلی آیت سے چھٹی آیت تک۔ اگلے زمانے میں خدا نے آباء و اجداد سے وقت بہ وقت اور طرح بہ طرح انبیاء کی معرفت کلام کر کے ان ایام کے آخر میں ہم ہی سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے تمام چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم کو خلق کیا۔ یہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ماہیت کا عین نقش ہو کر اپنی قدرت کے کلام سے سب کچھ سنبھالتا ہے۔
ये गुनाहों की तादीर करके आलमी बाला पर अशमत की दाहिनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से उसी की कदर अफजल ठहरा जिस कदर उसने उनकी निस्बत अफजल नाम मेरास में पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज ही तो मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा, वो मेरा बेटा होगा। और फिर जब पहलूटे को दुनिया में दाखिल करता है तो कहता है कि खुदा के तमाम फरिश्ते उसे सजदा करें। पाकलाम के पढ़े और समझाने पर खुदा की बरकत। Yesui Ustad, Yesui Rav, Yesui Hakiyar Zindagi hai. Yesui Ustad, Yesui Rav, Yesui Hakiyar Zindagi hai. Hallelujah, 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 एक मुतबरक दिन हम पर तलू हुआ है। ए तमाम कौमों, खुदावंद को सजदा करो, क्योंकि आज के दिन बड़ा नूर दुनिया पर चमका है। Hallelujah, 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 Hallelujah. खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की जिंदा खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी मर्जी हो। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज़ जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में ज़िंदगी थी और ज़िंदगी इंसानों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है, जो दुनिया में आता है। वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सकूनत पसीब हुआ, और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुक़द्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मौजूद वही जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशिफ किया है।
इंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मसीह खुदावंद में अजीज भाई और बहनों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, फादर शकील पैरिश प्रीस्ट, उनकी तरफ से मावर पैरिश प्रीस्ट, फादर दिलावर सैम्यूल, फादर अकील, फादर क्रिस्टोफर, मास्टर जॉनसन, तमाम पास्टर टीम, तमाम ब्रदर्स और मेरी जानिब से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ, यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अजीज भाइयों बहनों, आज की इस गिरजाघर की सजावट, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट, खुशी इस बात की अलामत है कि आप सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुश है कि नहीं? इतनी तादाद कुछ ज़्यादा ही खुश है। तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियाँ मनाने के लिए कि कलमा जो इब्तिदा में था ज़मीन पर उतर आया हम सब के लिए। हम सब उस कलमे की मुतजस्सद होने की खुशियाँ मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अजीज भाइयों बहनों, आज अगर हम देखें कलाम मुकद्दस में, जब खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया, खुदा ने आदम और हवा को बनाया, उन्हें पैदा किया, उनकी ज़िंदगी, उनके जो मिट्टी से इंसान को पैदा किया, उनके अंदर दम फूका, ज़िंदगी का दम फूका, उनकी नतनों में ज़िंदगी का दम फूका। जब इंसान की जान, आदम और हवा बाग़-ए-अदन में रहते, खुदा के साथ हम कलाम होते, बातचीत करते, गुफ्तगू करते, रफ़ाकत और शराकत में होते। उनकी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि किस बात की उम्मीद? हर चीज़ उनके पास मुकम्मल थी, पूरी थी, हर चीज़ उनके पास पूरी थी, इसलिए उनके पास उम्मीद का कोई तसव्वुर ही नहीं था। उम्मीद का कोई तसव्वुर ही नहीं था, क्योंकि हर चीज़ उनके पास पूरी थी। खुदा के साथ रफ़ाकत और शराकत में थे। जब उन्होंने नाफरमानी का गुनाह किया, तो वो बाग़-ए-अदन से निकाले गए। तमाम वो सहूलतें जो उन्हें बाग़-ए-अदन में दी गई थी, उनसे खारिज किया गया उनको। अब रफ़ाकत और शराकत जो खुदा के साथ थे, राब्ते में थे, वो राब्ता टूट गया नाफरमानी की वजह से। अब इंसान जब बाग़-ए-अदन से निकाला गया तो दर बदर फिरता, घूमता फिरता, और उसका कोई न सहारा न कोई आसरा था। अब खुदा ने अपने अंबिया इकराम को भेजा, नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा, ताकि उनकी रहनुमाई करें, और उन्होंने उनकी भी ना सुनी। और फिर खुदा ने चाहा कि मैं खुद ज़मीन पर आऊँगा और इंसान को इंसान बनना सिखाऊंगा। खुदा खुद ज़मीन पर आया और इंसान को इंसान बनना सिखाया। अजीज भाइयों बहनों, अगर हम देखें कायनात की इब्तिदा में खुदा ने मोहब्बत में पहल की, खुदा ने खुद मोहब्बत से इंसान को बनाया, और जब खुदा ने जब कायनात को बनाया, खुदा ने क्या कहा? अच्छा है। खुदा ने कहा अच्छा है। लेकिन जब इंसान को बनाया था तो क्या कहा था? क्या कहा? बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने मोहब्बत से बनाया। जब खुदा इतना अच्छा है, जो खुदा ने खुद जो चीज़ बनाई, इंसानों को बनाया, तो वो भी खुदा ने कहा बहुत अच्छा है। अब जब इंसान ने नाफरमानी का गुनाह किया, राब्ता टूट गया, उम्मीद टूट गई। फिर खुदा ने जब देखा इंसान दर बदर घूम रहा है, फिर रहा है, खुदा ने नबियों को भेजा। फिर खुदा जब इस ज़मीन पर खुद उतर के आया, एक बार फिर खुदा ने मोहब्बत में पहल की, क्योंकि खुदा की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा बाकी और कायम दायम रहती है। खुदा खुद इस ज़मीन पर उतर कर आया, एक बार फिर खुदा ने मोहब्बत में पहल की। अजीज़ भाइयों बहनों, अगर हम देखें आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज पूरी दुनिया में हम मसीही मोमिनीन, मसीह कलीसिया बरादरी जो है, उस मुनज्जी की, उस आदमी वाला की, उस खुदा की जो इस ज़मीन पर आया, उस यीशु मसीह की जो मुर्दों को जिंदा करता है, कोड़ियों को पाक साफ करता है, अंधों को बिनाई देता है, कुछ लोगों को आज़ादी बख्शता है, मुसीबत ज़दों पर रहम करता है, गूंगों को बोलने की ताकत और कुव्वत देता है। आज हम उसकी पैदाइश की ईद मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हम सब बहुत
خوش ہے۔ عزیز بھائیوں بہنوں، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ آج کے اس دن کو عید ولادت المسیح، جسے میری کرسمس ہم لوگ میری کرسمس ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرے کو بڑا دن کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی ہے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے، کیونکہ آج عیدوں کی عید ہے، آج تہواروں کا تہوار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بڑا دن کیوں؟ بڑا دن کیوں؟ اگر ہم دیکھیں بڑا دن اس لیے کیونکہ آج کے دن ہی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ یسی کے تلے سے قوم پر نکلے گی، آج کے دن وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، آج کے دن وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے جو اشعیاء نبی کہتا ہے کہ ایک کماری حاملہ ہوگی، اس سے بیٹا ہوگا، اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ایمانویل زمین پر آ گیا، ہم سب کے ساتھ آ گیا۔ آج کے دن وہ کلمہ جو ابتدا میں آسمان پر تھا، اوپر تھا، زمین پر اتر کر آیا، آج کے دن اس سلام کی تکمیل پوری ہوتی ہے جب جبرائیل فرشتہ مقدس مریم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھے گی، وہ بڑا ہوگا، حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اس کی بادشاہی کا آنکھیں ہوگا، اس کی بادشاہی کا آج کے دن ایک مقدسہ مریم، ایک کنواری مقدسہ مریم ننھے بچے کو جنم دیتی ہے، اپنے بدن میں سے بدن اور اپنے خون میں سے خون دیتی ہے، یعنی وہ کلمہ جو ابتدا میں آسمان پر تھا وہ انسانی صورت اختیار کر کے زمین پر آتا ہے، اور جب خدا زمین پر آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ بلکہ کثرت سے پاؤ۔ عزیز بھائیو بہنوں، آج تمام پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہے، اسی لیے آج عیدوں کی عید ہے، اسی لیے آج تہواروں کا تہوار ہے، اور ہم سب جو ہے ایک دوسرے کو بڑا دن کہہ کر مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں کو اور دوبارہ کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو بہنوں، آج جو کلمہ متجسد ہونے کی ہم عید منا رہے ہیں، وہ کلمہ جو ابتدا میں آسمان پر تھا زمین پر آ گیا، اس کلمہ متجسد ہونے کی سب سے پہلے خوشخبری کن کو ملی اور کس کے ذریعے ملی؟ جب بچہ یسوع اس دنیا میں پیدا ہوا، اس کی خوشخبری سب سے پہلے کن کو ملتی ہے؟ فرشتوں کو ملتی ہے، اور کن کے ذریعے ملتی ہے؟ فرشتوں کے ذریعے ملتی ہے۔ عزیز بھائیو بہنوں، اگر ہم دیکھیں فرشتوں کی اگر ہم بات کریں، فرشتے وہ آسمانی مخلوق ہے، قرآن مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے زمین پر خدا کا پیغام لے کر آتے ہیں، نبیوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کے آگے آگے چلتے ہیں، اور الہی اختیار کے ساتھ آتے ہیں خدا کا پیغام لے کر، اور خدا کا پیغام لے کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کل جو ہم نے تلاوت سنی، جب آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، گدھیوں کو خوشخبری دیتے ہیں، چرواہوں کو خوشخبری دیتے ہیں، ایک طرف آسمانی مخلوق ہے فرشتے آسمانی مخلوق، اور چرواہے گدھیے زمینی مخلوق ہے، دونوں ایک ہی پیج پر ایک ہی مقام پر نظر آتے، ایک طرف آسمانی مخلوق، ایک طرف زمینی مخلوق، یعنی کہ نجات تو زمین والوں کی ہے لیکن خوشیاں تو آسمان والے بھی منا رہے ہیں، خوشیاں تو آسمان والے بھی منا رہے ہیں۔ عزیز بھائیو بہنوں، اگر ہم دیکھیں فرشتوں کا کردار، فرشتوں کو اگر ہم دیکھیں، جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے خدا کا پیغام لے کر، اس مقام سے لے کر، اس وقت سے لے کر جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا جاتا ہے 40 دن کے بعد، اس وقت 7 مختلف مقامات پر فرشتے ظاہر ہوتے ہیں، 7 مختلف مقامات۔ سب سے پہلے جبرائیل فرشتہ آتا ہے مقدسہ مریم کے پاس، کہتا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہو، تجھ سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھے گا، پہلی مقام۔ دوسرے مقام پر کب فرشتہ دوبارہ آتا ہے؟ کس کے پاس آتا ہے؟ یوسف کے پاس آتا ہے، جب یوسف اس کو جو ہے چھپ کے چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ راز باز اس کا، وہ اس کو رسوا بھی کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ نیک بھی تھا، وہ ڈرتا بھی تھا خدا سے۔ دوسری مقام پر دوسری مرتبہ فرشتہ یوسف کے پاس آتا ہے، اور تیسری مرتبہ فرشتہ کب آتا ہے؟ جب یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہوتا ہے، یسوع مسیح پیدا ہوتا ہے، فرشتہ کن کے پاس آتا ہے؟ گدھیوں کے پاس آتا ہے، چرواہوں کے پاس آتا ہے، خوشی کی بشارت ہے کہ آج تمہارے لیے خوشی کی بشارت ہے کہ ایک تمہارے درمیان منجی پیدا ہوا، تم اسے چرنی میں کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا پاؤ گے۔ اور یکایک فرشتوں کا گروہ آتا ہے، عالم بالا پر خدا کی تمجید وہ گاتے ہیں تمام فرشتے۔ تیسرے مقام، چوتھے مقام پر جب یسوع مسیح 40 دن اور رات اپنی آزمائشوں پر غالب پاتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، 40 دن اور رات آزمائشوں پر غالب پا کر فتح یاب ہو کر فرشتے اس کی خدمت گزاری کے لیے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ پھر 5ویں مقام پر گثسمنی باغ میں جب یسوع مسیح صلیبی سفر اپنا شروع کرنے کو ہوتے،
तसल्ली बाग में दुआ करता है तो फरिश्ता जाहिर होता है, उसे यीशु मसीह को तकवीयत देता है, कुव्वत देता है, ताकत देता है ताकि वो सलीबी सफर जारी सारी करे। और पांचवें मकाम पर, छठे मकाम पर कि जब खुदावंद यीशु मसीह मौत पर, कब्र पर गालिब आता है तो जो कब्र का पत्थर हटाने वाला कौन होता है? फरिश्ता होता है जो मुकद्दस औरतों को दिखाई देता है। जो मुकद्दस औरतें आती है यीशु मसीह की कब्र पर तो फरिश्ता उन्हें दिखाई देता है कि तुम किसे ढूंढते हो। और फिर सातवें मुकाम पर कब दिखाई देता है? जब यीशु मसीह आसमान पर जा रहा था, आसमान पर जा रहा, लोग उसको जाते हुए देख रहे थे, फरिश्ता सामने, फरिश्ता जाहिर होकर कहता है कि तुम जिस यीशु को आसमान पर जाते हुए देख रहे हो ये दोबारा आएगा और तुम सबको अपने साथ ले जाएगा। सात मकामात पर फरिश्ते हमें नजर आते हैं। और एक बार फिर आज इस ईद के मौके पर फरिश्ते जो है इन आसमानी मखलूक ज़मीनी मखलूक के साथ हम कलाम में बातचीत करें, गुफ्तगू कर रहे, यानी कि जो नजात ज़मीन वालों की है और खुशी आसमान वाले भी मना रहे हैं। अजीज भाइयों बहनों, और जब चरवाहों का अगर हम गौर करें, चरवाहे रद्द किए हुए थे, माशरे से अलग थलग थे। अगर चरवाहों की और जिंदगी पर गौर करें, वो अलग थलग थे, दिन भर मसरूफ रहते थे अपने भेड़ बकरियों की गलाबानी के लिए। अगर हम देखें चरवाहों की जिंदगी को कलाम मुकद्दस में बेशुमार किरदार मिलते हैं, बड़े बड़े किरदार जो चरवाहे थे। इब्राहिम की बात करें तो इब्राहिम भी चरवाहा था, खुदा उसके साथ मंसूबाजात बांधता है अपने। अब बनी इस्राइल कौम, आगे देखें बनी इस्राइल कौम जब मिस्र की गुलामी में थी, खुदा ने मंसूबा बांधा कि अब मिस्र की गुलामी से मैं इनको आज़ाद कराऊंगा। तो किसको चुना था? मूसा को चुना। और मूसा कौन था? चरवाहा था। मूसा चरवाहा था। दाऊद बादशाह, जो कि बादशाह में सबसे बड़ा बादशाह कहलाता है, इस्राइल के अंदर सबसे बड़ा बादशाह, वो भी एक चरवाहा था। अगर हम दाऊद बादशाह को देखें, दाऊद बादशाह एक बहुत बड़ा चरवाहा, एक बहुत बड़ा बादशाह जिसकी हुकूमत तकरीबन 40 साल रही। तो कहा जाता है तारीखदान जो कलाम मुकद्दस के मुफक्किरीन और माहिरीन है, वो ये कहते हैं कि जिस जगह पर यीशु मसीह पैदा हुआ बैतलहम में, उस आसपास की जो ज़मीन थी वो दाऊद के बाप यस्सी से थी, यानी कि वो तमाम ज़मीन जो थी दाऊद के बाप यस्सी से मुताबिक थी, उनकी थी, दाऊद के बाप की थी वो सारी ज़मीन। और दाऊद अक्सर औकात वहाँ बैठकर अपने गल्लों की निगहबानी करता था। और ये वही जगह थी जहाँ दाऊद ने 23वां ज़बूर लिखा था, 23वां ज़बूर बैतलहम के पास। और आज यीशु मसीह उस जगह पर पैदा हुआ है। अजीज़, अगर हम देखें दुनिया में रहते हुए हम अपने दिल की बात, अपने राज, अपने भेद किसके साथ जाहिर करते हैं, किसके साथ शेयर करते हैं? जो हमारे दिल के करीब होता है, जो हमारे बहुत करीब होता है, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ राज शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं। इसी तरह खुदा ने भी सबसे पहले जो है निजात का मंसूबा, जो खुशखबरी जो है गडरियों को दी, यानी कि खुदा के बहुत करीब था। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उन्होंने ना आलीशान महल चुना, ना मिडिल क्लास फैमिली चुनी, बल्कि नीचे तबका चरनी में पैदा हुआ। हम सब दिखाते हैं। अजीज भाइयों बहनों, अगर हम देखें गडरियों को, चरवाहे दिन पर मसरूफ होते हैं, मुख्तलिफ काम में मसरूफ होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें हमारी भी जिंदगियाँ हैं, हम भी बहुत मसरूफ है। कोई एक जॉब में, कोई दो जॉबों में, कोई 8 घंटे की जॉब, कोई 12 घंटे की जॉब। इन आमद के 4 अखबार में भी हम मसरूफ रहे थे कहीं ना कहीं। लेकिन देखें गडरियों के पास जब फरिश्ता आता है पैगाम लेकर, खुशी की बशारत लेकर, तो चरवाहे क्या करते हैं? इंतजार करते हैं कि सुबह हो गई हम जाएंगे। क्या करते हैं? उसी वक्त चले जाते हैं, सोचते भी नहीं है, उसी वक्त चले जाते हैं, उठते और बैतलहम को चले जाते हैं। आज हमने क्या करना? मसरूफ तो हम भी अपनी अपनी ज़िंदगियों में, कोई काम में, कोई कारोबार में, कोई इधर उधर, हर काम में मसरूफ है, लेकिन हमने वक्त निकालना है। हमने बैतलहम में जाने की ज़रूरत नहीं, बैतलहम जाने की ज़रूरत नहीं, बैतलहम यहीं पर ही, बैतलहम यहीं पर ही। हमने एक दूसरे में यीशु को देखना है, मसरूफियात में से वक्त निकाल कर एक दूसरे में बच्चे यीशु को देखना है। बैतलहम जाने के तो बैतलहम यहीं पर ही हमारा, हमने एक दूसरे में यीशु को देखना है, एक दूसरे को गले लगाना, अपनाना, यही हमारा क्रिसमस है, यही हमारा क्रिसमस है। अजीज भाइयों बहनों, आज के दिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ, यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा इस दुनिया में आया, इसके साथ साथ एक और किरदार, इसे कई बार हम थोड़ा नज़रअंदाज तो नहीं मगर थोड़ा साइड पे रखते हैं, वो है कौन? कस्सा मरियम है। एक बार एक
शख्स ने बच्चों से पूछा है, काहिन ने बच्चों से पूछा कि यीशु मसीह बैतलहम में क्यों पैदा हुए? मुख्तलिफ जवाब आए। इसमें से एक बच्चे ने जवाब दिया कि इसलिए बैतलहम में पैदा क्योंकि वहाँ उसकी माँ थी, वहाँ उसकी माँ थी, और जब माँ होती है वहाँ बेटा होता है, वहाँ बेटा होता है। अजीज भाइयों बहनों, मुकस्सा मरियम को देखे, जब जबराइल फरिश्ता मुकस्सा मरियम के पास आता है और कहता है खुदा का पैगाम लेकर कि तू हामिला होगी, तुझसे बेटा होगा, मुकस्सा मरियम घबरा जाती है। वो एक इल्म रखने वाली खातून, दुआ करने वाली खातून, ईमानदार खातून, वो जानती थी इस मंसूबे के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, मेरा ईमान क्या होना पड़ेगा, मेरा ईमान किस कदर मजबूत होना पड़ेगा, इस बात को समझती थी। और वो साथ ही साथ वो कहती है कि ये किस तरह होगा कि जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ, मर्द से नावाकिफ हूँ, क्योंकि मुकस्सा मरियम जानती थी इस कायनात की तकलीफ किस तरह हुई है। 3 किस्म की तकलीफ। सबसे पहले खुदा ने आदम को बनाया जमीन की मिट्टी से, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, ये पहली किस्म की पैदाइश। दूसरी किस्म की पैदाइश हवा की, हवा को डायरेक्ट मिट्टी से नहीं बल्कि आदम की पसली में से बनाया, पसली में ली और वो हवा को बनाई। दूसरी किस्म की पैदाइश, यानी पहली किस्म की पैदाइश दूसरी किस्म से थोड़ी मुख्तलिफ है। तीसरी किस्म की पैदाइश कि जब खुदा ने आदम और हवा को बरकत दी और कहा पलो और बढ़ो, जमीन को मामूरो महमूद करो, उन्हें बरकत दी, उनसे उनकी औलाद पैदा हो। यानी कि बस अजीज भाइयों बहनों, इस तकलीफ का काम आज भी दुनिया में जारी और सारी है, नर और मादा से। और ये तकलीफ का काम जो है निकाह के सैक्रामेंट में देखते हैं। ये 3 किस्म की पैदाइश। लेकिन जब हम निजात दहिंदा की बात करते, अपने यीशु मसीह की बात करते, इमैनुएल की बात करते, तो खुदा ने ये 3 किस्म की पैदाइश नहीं चुनी, इन 3 किस्म की पैदाइश को नहीं चुना, बल्कि एक नई किस्म की पैदाइश कि रूह कुदस तुझ पर साया डालेगा, इस तरफ से वो कुदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। अब मुकस्सा मरियम जब ये सुनती है तो मुकद्दस बर्नार्ड कहते हैं कि जब जबराइल फरिश्ता मुकस्सा मरियम के आपस में गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी, उस वक्त आसमान और जमीन पर सितारे, सैयारे, दरिया, समंदर, पहाड़, दरिया, पत्ते सब कुछ अपनी अपनी जगह पे रुक गए थे, सकत हो गए थे। क्या मुकस्सा मरियम क्या जवाब देगी कि वो जो दुनिया का बनाने वाला, कायनात को तकलीफ करने वाला है, उसके जमीन पर आने का ऐलान हो रहा है, और उस सारा ऐलान जो है सिर्फ एक हाँ पर है। मुकस्सा मरियम क्या जवाब देगी? अगर मुकस्सा मरियम ना कहे तो क्या होगा, अगर हाँ कहे तो क्या होगा? इंतजार बहुत बड़ा, आमद बहुत बड़ी थी। इशाए नबी 700 साल तक मुनादी करता रहा, दूसरे अंबिया किराम मुनादी करते रहे। आज जब मुकस्सा मरियम के कानों में आवाज पहुंची कि यीशु मसीह तुझसे पैदा होगा, तो सारी कायनात रुक जाती है। क्या मुकस्सा मरियम क्या जवाब देगी? और जो ही मुकस्सा मरियम के कान में आवाज आती कि यीशु मसीह तुझसे पैदा होगा, तो निजात का मंसूबा तुझसे पैदा होगा, तो मुकस्सा मरियम क्या कहती है? देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। और मुकद्दस बर्नार्ड बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं कि जब मुकस्सा मरियम ने ये जवाब दिया तो आसमान पर सितारे, सैयारे, जमीन पर दरिया, समंदर, जो लहरें थी, समंदर की पानी की लहरें शोर मचाने लग गई, झूमने लग गई, खुशियां मनाने लग गई कि यीशु मसीह को पैदा करने के लिए मुकस्सा मरियम ने हाँ कर दी, मुकस्सा मरियम ने हाँ कर दी। अजीज भाइयों बहनों, अगर हम देखें इस जुमले को कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, हम अक्सर औक़ात अपनी ज़िंदगी में हम जो भी मनसूबाजात बांधते हैं, जो भी बात करते हैं, कोई ऐसे जो है मनसूबाजात बांधते हैं, हम उसमें अपनी मर्जी को शामिल करते हैं, खुदा की मर्जी को शामिल नहीं करते। अगर हम किसी मकाम पर पहुंच गए तो हम समझते शायद ये मेरी अपनी काबिलियत है, ये मेरी अपनी मेहनत है, ये मेरा अपना हुनर है। लेकिन नहीं, याद रखें हम खुदा के बगैर कुछ नहीं है। ताक में हो तुम डालिए, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अजीज भाइयों बहनों, आज इस ईद के मौके पर हमने मुकस्सा मरियम का किरदार भी अपने सामने रखना है, उस अल्फाज को सामने रखना है कि देख मैं खुदावंद का बंदा हूँ, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। और हमें एक दूसरे को अपनाना है, एक दूसरे बच्चे यीशु को देखना है, और मसरूफ ज़िंदगी में सबक निकाल कर एक दूसरे गले लगाकर इस क्रिसमस की खुशियों में एक दूसरे में ज़िंदगी में शरीक होना हो, क्रिसमस की खुशियों को दोबारा करना है। तो आपको और मुझे हम सबको ऐसा करने का फजल दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।